Greeting from SDMIC classes. Nothing is impossible for a brave and hard-working person with a willing mind. The students must have the qualities of desire, decision, and determination. If the students have these three qualities, definitely they can achieve their goal, life's goal. Chapter 2, Accounts of Not-for-Profit Concern. This is class 2. Hope you must have watched my previous class. I believe you all must have understood. Now I request you to pay attention. Let us start. So this chapter 2, we have already seen this, and we have learned up to I think this is your textbook, introduction, meaning of not-for-profit concern, features of not-for-profit concern. We have already learned the difference between profit organization, not-for-profit organization, and then need for maintaining books of accounts. Up till we have learned. Now now in this class we will learn meaning of receipts and payments account. So let us continue. The meaning of receipts and payments account. The day-to-day transactions of a not-for-profit concern are recorded in a cash book and then they are posted to the ledger accounts. जो regular transaction जो होता है, normal transaction day-to-day activities जो भी होता है, जो भी activities का होता है, that is recorded in the cash book. Cash book contains if it is a manual cash book, then there will be a cash column and a bank column. So it will be both the same. Cash book and it's a common cash book which contains cash column and a bank column. So it is a bank book as well as a cash book. So for cash transaction, for bank transaction, the bank column will be added. Whereas if it is in the means this software, and then it will be a bank book separately and a cash book separately. Okay, but whatever the transactions are doing in this not-for-profit organization, that will be passed in the cash book and the bank book. And then from there it is posted to the ledger in the case of manual accounts. Otherwise, if it is a software, then it will be directly posted to the ledger. One entry, if you are making the cash book or a bank book, it is posted to the ledger immediately. In the case of a traditional way, your means the cash book contains a cash column and a bank column. Whatever bank payments are made, that will be passed through the bank column. Receipts and payments account in the cash book, and whatever the cash transactions are done, that is passed through the cash book in the receipt side and payment side, receipt column and payment column. If the cash receipts are made, this entered in the receipt side of the cash book, and if it is cash is paid, then it is entered on the payment side of the cash book. Same way, if it is a bank receipts and checks are received, or so for example some subscription or donation etc. received by check, then that should be passed through the bank book. Now the bank column it is entered receipts, and if there is a payment, for example electricity bill payment किया या कुछ purpose के लिए कुछ payment check से दिया है, that will be passed made that entry to the bank column payment side. That's easy. And if it is a manual ledger, then it should be posted to the ledger. At the end of a financial period, the cash book and ledger accounts are balanced, and from these balances, receipts and payments account is prepared. The receipts and payments account is a real account. At the end of the financial period, the cash book and ledger accounts are balanced, and from these balances, receipts and payments accounts are prepared. The receipts and payments account is a real account. Okay, that means a cash book or receipts and payment account is a real account. At the end of the financial period, the cash book and ledger accounts are balanced. वो balance करेगा cash column receipts, receipt side and payment side. इसका balance ले लेगा. And then bank receipts and bank payments are total, and then the balance will be taken out. Then every month वो balance carry forward करते जाएगा, और finally जो balance आएगा that will be a cash balance and a bank balance. और ledger accounts balance करते हैं, और उसमें ऐसे एक
receipts and payments accounts बनाते हैं. और ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. receipts and payments account is a real account, nominal account और personal account पूछेगा तो then receipts and payments account is a real account. Credit transactions are not recorded in receipts and payments account. Credit transactions, in a sense, what is that? Credit means not debit or credit. It is a क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स उधारी, मीन्स जो सर्विस आज मिला पेमेंट बाद में देगा, और सर्विस पहले दिया और पेमेंट बाद में मिलेगा, ऐसा ये जो टाइप का जो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. Receipts and payments account is a summary of cash and bank transactions for a particular period. जो एक्चुअली क्या होता है, एक पर्टिकुलर रजिस्ट्री मेंटेन करते हैं, समझो, मीन्स कैश एंड बैंक. तो उसका जो इफेक्ट्स जो ट्रांजैक्शन जो होता है एंट्रीज वो पोस्टिंग करता है और उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकाल देता है. और कैश अकाउंट का उधर कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस भी आ जाता है जो कैश बुक में. और so that is a receipts and payment account is a summary of cash and bank transaction for a particular period. All receipts are shown to the debit side or debit side. Receipts जो भी receipts होते हैं वो debit side में, left side में का register में entry ले लेते हैं, and payments on the credit side of the cash book, right side का जो है उसमें entry कर लेते हैं. Okay, these accounts start with opening cash and bank balance. Different banks अगर कुछ रहेगा तो उसका हिसाब से वो ले लेते हैं. And closes with cash and bank balances at the end of the year, or closes with cash and bank balance at the end of the year. Receipts and receipts. All receipts during the particular period are debited to the receipts and payments account, irrespective of the year for which they are received, and irrespective of the nature of revenue or capital. रेवेन्यू रिसीट है क्या कैपिटल रिसीट है वो नहीं देखता है. जो भी मिला है मीन्स वॉट एवर पेमेंट्स रिसीव्ड दैट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. जो कैश बुक में जो रिसीट्स में जो डेबिट साइड में होता है दैट इज द रिसीट्स. और वो उसमें कैपिटल नेचर है क्या, रेवेन्यू नेचर है या करंट ईयर का क्या, प्रीवियस ईयर का क्या, नेक्स्ट ईयर का, वो कुछ देखता नहीं है. ठीक है. सो दैट विल बी टेकन इन द रिसीट साइड ऑफ द account. Such receipts may be related to previous year or current year or next year. All receipts are debited to this account. Already ने बताया वो कौन सा ईयर का नहीं देखता है, करंट ईयर है क्या, प्रीवियस ईयर है क्या, नेक्स्ट ईयर है क्या, वो कुछ देखता नहीं है. जो भी मिला है वट एवर इज दैट इज अ टर्म इटसेल्फ इज रिसीट्स एंड पेमेंट. जो भी रिसीट्स आया है, जितना भी रिसीट्स आया है, जो पेमेंट जितना भी पेमेंट किया है वो. So that won't look into the any year or nature of payment. मतलब रेवेन्यू है क्या, कैपिटल है क्या, उसे देखता नहीं है. ठीक है. वॉट एवर आया है वो पूरा एंट्री करना ही पड़ता है, कंट्रैक्ट एंट्री करेगा. Payments. All payments made during a particular period are credited to receipts and payments account. वो क्रेडिट साइड में एंट्री कर देता है. जो पे पेमेंट्स मतलब कैश बुक का राइट हैंड साइड में, राइट कॉलम, हैंड साइड कॉलम में उसको एंट्री करता है. ठीक है. पेमेंट irrespective of the period which it is related to and irrespective of their nature, रेवेन्यू और कैपिटल, वो देखता नहीं है. जैसा मीन्स जो रिसीट साइड का बताया है, जो रेवेन्यू नेचर है क्या, कैपिटल नेचर है देखता नहीं है. सेम कौन सा ईयर का ही नहीं देखता नहीं है, उसका रिसीट्स का एंट्री करता है. सेम वे पेमेंट्स का राइट साइड उसका पेमेंट साइड में एंट्री करता है. वो ईयर या डेट या कुछ देखता नहीं है. सच पेमेंट्स में भी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर. सिमिलरली सच पेमेंट्स में भी और रेवेन्यू और कैपिटल नेचर जो भी होगा वो एंट्री करेगा. ऑल आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट. Accounts of profit concern. Receipts and payment account for the year ended 31st March 2020. और उसका एक ये है एक ब्रीफिंग मीन्स कैसा है वो डेबिट साइड और क्रेडिट. इसका एक मॉडल है, मॉडल ऑफ दिस receipts and payments. See this debit side receipts और एक पर्टिकुलर कॉलम आएगा मीन्स डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और अमाउंट कॉलम आएगा. तो ऑल रिसीट्स रेवेन्यू और कैपिटल प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर वॉट एवर जो भी आया रहेगा वो इधर ये जो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड में ले लेते हैं. और राइट हैंड साइड में पेमेंट्स. सी पेमेंट्स देख लिए, रिसीट्स इधर आ गया, रिसीट्स. ठीक है. रिसीट्स इधर आ गया और ये लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज अ सेंटर.
कि दिस इज़ अ सेंटर, और इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में रिसिट्स, ये रजिस्टर है, समझो ये रजिस्टर है, ये बुक, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में रिसीट्स और डिस्क्रिप्शन आएगा, जो भी कैसे किस हिसाब से आया है, किस कैसे आया है, क्या है, नेचर ऑफ रिसीट्स इधर लिखे रहेगा, अमाउंट इधर एंट्री करेगा। पेमेंट्स, जो नेचर ऑफ पेमेंट्स कौन सा है, कौन सा टाइप, किसके लिए पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी के लिए होगा, या वाटर बिल के लिए होगा, या कुछ ना कुछ किसी के लिए, कुछ रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, किस किस का है, जो भी है वो पेमेंट का ये एंट्री इधर, जो डिस्क्रिप्शन इधर लिखेगा और अमाउंट इधर लिखेगा। दिस इज़ अ थिंग। ओके, नाउ होप यू अंडरस्टूड दिस। Now features of receipts and payments account. Features क्या है? First, receipts and payments account is a real account, वो तो आपको मैंने बताया है। Now second, receipts and payment account is similar to cash book, summary of cash and bank transaction. तो जो भी आएगा इसमें हम लोग परचेस रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, ये सब है ना, ऐसा कुछ रखता नहीं है। ओनली वन कैश बुक मेंटेन करते हैं। कैश बुक में कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम रहता है, इट्स इन ट्रेडिशनल मेथड। और इसमें आएगा व्हेन इट इज़ इन सॉफ्टवेयर में आएगा तो बैंक बुक सेपरेट और कैश बुक सेपरेट आ जाता है, ठीक है। तो उधर यहाँ जो ट्रेडिशनल मेथड से उसको हम लोग को पोस्टिंग करना पड़ता है लेजर में, और जो सॉफ्टवेयर में हम लोग को जो स्टेक एंट्री, अगर जो कैश बुक का जो रिसीट्स का एंट्री किया है तो ऑटोमेटिक वो पोस्टिंग हो जाता है, और पेमेंट का एंट्री करेगा तो वो भी ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो जाता है। वेयरएज इन द ट्रेडिशनल मेथड यू हैव टू मेक दैट एंट्री एंड देन पोस्ट इट टू द लेजर। थर्ड, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। इसमें रेवेन्यू नेचर है क्या, कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट है क्या, कैपिटल रिसीट है क्या, वो देखता नहीं है। ऑल रिसीट्स, ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट्स आर एंड पेमेंट्स आर entered. Receipts in the receipt side, debit side, and payments in the payment side, others credit side. Fourth, it records all receipts and payments made during a particular period, whether it is a current year or previous year or next year. जो भी पेमेंट आ गया है एक पर्टिकुलर डेट में, उसका एंट्री करता है। फिफ्थ, income receivable and amounts payable are not recorded in this account, or since it is a receipts and payments account, इसमें वो जो रिसीवेबल और पेएबल का एंट्री नहीं करता है, ठीक है। इट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है और मिलने का है, या पेएबल पेमेंट करने का है, वो सब चीज़, वो सब अमाउंट्स इसमें एंट्री नहीं करता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लेता है। 6. This account is a base to prepare final accounts of not for profit concern. ये receipts and payments account, ये जो है, this is a base for preparing final accounts of not for profit organization. What is the final accounts of profit not for profit concern? That is income and expenditure account and balance sheet. This account shows opening and closing balance of cash and bank balance. जो cash receipts and payments account में so cash and since it's a bank book, cash book है, तो उसका cash and bank balance उसमें आ जाता है finally. Receipts and payment account in Excel file. Okay, now let us see specimen receipts and payments account. This is a pro forma model, means example how to make the receipts and payments account. इसके लिए ये जो ये किया है, I'll show you in the books of so and so, means कोई भी जो इसका है उसका कोई भी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा उसका एक नाम लेगा, तो नाम पे आएगा इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो। Receipts and payment account for the year ended 31st March or so and so, any particular year. Then they see the receipt side, देखो this already हम लोग ने, मैंने इधर भी हम लोग ने जो लास्ट हम लोग ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया था, जो चैप्टर 1 में जो एक्सप्लेन किया था, तो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते टाइम में 2 कॉलम्स, एक इनर कॉलम मेरा आउटर कॉलम लिया है, तो सेम इधर भी हम लोग ने ऐसा किया है। वो कुछ ये रहेगा तो उसको ऐड करने के लिए, और जो फाइनली जो आउटर कॉलम में ले लेगा, लाइक मीन्स नाउ इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कुछ समझो कुछ कैश बैलेंस या कुछ भी रहेगा, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में इधर देखो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है, कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, और टोटल ले लिया। नेम ऑफ द बैंक, अगर बैंक रहेगा तो उसका एक लिस्ट भी बना सकता है, यानी तो इसमें 2 बैंक रहेगा तो 2 बैंक का ले सकता है। कैश का तो एक ही रहेगा, बैंक का 2 बैंक 3 बैंक या कुछ रहेगा तो उसका ये एक बैंक रहेगा तो एक का ले लेगा।
देन टू सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर वो आया है क्यों, अकॉर्डिंगली उसको बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा, इसकी वजह से वो इधर ए ले लिया है। ओके, सो उसका लास्ट ऑर्डर कॉलम में ले लिया। दो एंट्रेंस फीस ले लिया है, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज, गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशंस, जनरल डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, प्राइस फंड, बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड एक्सेट्रा। वो उस हिसाब से जो डोनेशन आया है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता है, उसको स्पेसिफिक दिखाना ही पड़ेगा वो इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में इसको बताना ही पड़ेगा। सो डोनेशन, जनरल डोनेशन मिला है उसको जनरल इस कैटेगरी में ले लेगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो स्पेसिफिक। देन डिविडेंड रिसीव, वो कोई मीन्स जो इधर कुछ हम लोग ने कुछ इन्वेस्ट किया रहेगा, जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, कौन सा भी कुछ कंपनी का शेयर लिया रहेगा या किधर कुछ इन्वेस्ट किया रहेगा, उसका जो डिविडेंड आया है वो इधर इनकम में ले लिया। हायर और हॉल रेंट सर्विसेज, अभी ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोई हॉल्स बनाता है या कुछ ग्राउंड, जो लोग का ग्राउंड रहता है या कुछ वो कुछ मैरिज के लिए, कुछ फंक्शन के लिए, कुछ इवेंट्स के लिए देते हैं, तो उसका रेंट आता है और रेंट रिसीव। सन्ड्री इनकम, कुछ अदर कुछ इनकम, कोई मिसलेनियस कुछ जो वो डिस्ट्रीब्यूट ये होता है तो उसमें कुछ इनकम आ गया उसका। देन सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, कुछ भी ये किया उसका, सेल ऑफ न्यूज़पेपर स्क्रैप का, मिसलेनियस रसीट्स, टूर्नामेंट रसीट्स, और टूर्नामेंट में कोई समझो कोई टिकट रखा या कुछ भी रखा तो उसका रिसीट्स कितना है, और क्रिकेट फीस है, कुछ क्रिकेट का जो कुछ ये रहेगा तो उसका जो कंपटीशन में कोई पार्ट लेते टाइम में कुछ फीस लेते तो उसका, और इन लोग कुछ ट्यूशन कंडक्ट करते तो ट्यूशन का कुछ फीस आया, टर्म फीस कुछ आया है, वो कलेक्शन ऑफ फाइन, कुछ चार्जेस जो मेंबर्स को या कुछ चार्जेस किया है या किसी को कुछ उधर कुछ जो कोई टूर्नामेंट करते टाइम में कुछ ना कुछ वो कुछ ये किया है तो कुछ फ़ाइन लगाया रहेगा, मतलब जो उसका टर्म्स का हिसाब से नहीं गया है, टर्म्स वायलेट किया रहेगा तो कुछ चार्जेस होता है, कुछ डैमेज किया तो उसका फाइन्स लगाता है। देन लॉकर रेंट, वो उसको कुछ मेंबर्स या किसी को कुछ लॉकर का ये बेनिफिट फैसिलिटी चाहिए तो उसका लॉकर का रेंट, एग्ज़ाम फीस, देन बैलेंस कैरीड डाउन इफ इट इज़ अ बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, देन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जैसे पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, सो दिस इज द फॉर्मेट है, जस्ट सी दिस, बैलेंस नोट डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इफ इट इज़ अ बैंक ओवरड्राफ्ट इधर आ जाएगा, मीन्स क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इफ इट इज़ अ बैंक, देयर इज़ अ बैंक बैलेंस, इट विल बी कमिंग हियर। इफ इट इज़ अ ओवरड्राफ्ट और सीसी और नॉर्मली इसमें नहीं होता है, लेकिन बट स्टिल अगर कोई मीन्स ये कुछ पर्पज़ के लिए कुछ ओवरड्राफ्ट लिया रहेगा तो फिर वो इधर आ जाएगा। एक्चुअल में देखा जाएगा तो ओवरड्राफ्ट लेने का पर्पस है नहीं है, लेने का ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझो अगर लिया रहेगा तो देन वो इधर आ जाएगा, क्योंकि ये सोसाइटीज़, सॉरी ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इसका ज़रूरत नहीं, इसका ये नहीं पड़ता है, क्योंकि वो फंड जितना है उसी से एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है, बट स्टिल ओवरड्राफ्ट रहेगा तो इधर। देन सैलरीज, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और आउटर कॉर में ले लिया। रेंट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर आता है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अगर कुछ बैंक लोन लिया रहेगा तो उसमें कुछ फॉर एग्जांपल कुछ बिल्डिंग बांधना रहेगा, या नहीं तो कुछ ग्राउंड डेवलप करना पड़ेगा, या नहीं तो कुछ लैंड लेने का कुछ पर्पस के लिए लिया है तो उसमें बैंक से कुछ लोन लिया रहेगा तो वो लोन का इंटरेस्ट कितना है उसके हिसाब से। जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेमेंट किया, ऑडिट फीस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, वेजेस, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, इंश्योरेंस, समझिए वो स्पोर्ट्स क्लब रहेगा तो परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स तो लेना पड़ता है, लाइब्रेरी रहेगा तो बुक्स लेते हैं, ऐसा लाइब्रेरी में तो स्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ता, तो लेकिन स्पोर्ट्स में बुका नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल की ज़रूरत पड़ता है। और वो जो एसेस को कुछ इंश्योरेंस किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम, देन टेलीफोन, मोबाइल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज, कन्वेंस ऑफ मेंबर्स, कुछ पर्पस के लिए या कुछ इसका स्टाफ इधर उधर गया उसका। देन एक्सपेंसेस फॉर एनुअल फंक्शन, फिक्स डिपॉजिट दिया है वो
बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है, अगर समझो कुछ ज़्यादा फंड आ गया तो फिक्स डिपॉजिट में डाल देगा, वाई टू मेक इट अर्न सम इनकम। और फंड्स अगर करंट अकाउंट में रहेगा या तो सेविंग्स अकाउंट में रहेगा तो दैट वोंट अर्न एनी इनकम। तो अगर ज़्यादा फंड सरप्लस आ गया तो उसको एफडी में कन्वर्ट करते हैं, वाई बिकॉज दे कैन अर्न सम इनकम, और एफडी इंटरेस्ट मिलता है ना, तो उसके लिए। तो परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसमें बुक्स, बिल्डिंग, ये जो इन केस ऑफ लाइब्रेरी में होता है, बुक्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, और बाय इन्वेस्टमेंट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट किया वो बाय न्यूज़पेपर का जो क्लब और ये सब रहेगा तो न्यूज़पेपर और मैगजीन सब मंगाते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, नेम ऑफ बैंक। मैं समझो इधर अपना मीन्स टोटल जो कैश का कितना रहेगा तो इधर इसमें इधर ये जो कैश इन हैंड ये जो आ गया तो इधर कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस आ गया। ओके, दिस इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का एक मॉडल है। ओके, सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। So this is a model of receipts and payments account. See, you can just go through this one by one. Debit side, then credit side. Debit side is receipt side, receipts, and credit side is payment side, same payment side. तो आप लोग ये देना इनसे जो स्क्रॉल करके या पॉज करके ये सब करके देख सकते हैं क्या क्या है करके, जैसे मॉडल। और इसमें अलग अलग, अभी समझो ये सब अकाउंट एक ही इसमें आना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी टू कमिट इन वन अकाउंट, सपोज डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, मे बी इट मे बी ए स्पोर्ट्स क्लब, और मे बी एट ए लाइब्रेरी, और मे इट बी ए क्लब, और मे बी इट मे बी ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, से मे बी ए ट्रस्ट और एनीथिंग, उसके हिसाब से दिस अकाउंट हेड्स विल चेंज, बट दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ एक जनरल, एक कॉमन ये नहीं बताया है। ओके, अभी ये हॉस्पिटल का बनाएगा तो फिर वो ये टाइप का नहीं आएगा, और क्लब का मीन्स जो बनाएगा तो सम अलग फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट बोले तो हेडिंग फॉर्मेट सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ये फॉर्मेट चेंज ही नहीं होता है, ये सही है। बट द हेड्स ऑफ अकाउंट्स बोलेगा तो ये समझो एंट्रेंस फीस ये सब जो होता है वैसा। इधर ये जो है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये सब जो होते हैं, ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस बोलेगा तो अभी स्पोर्ट्स क्लब में ही होता है ना, और लाइब्रेरी रहेगा तो फिर लाइब्रेरीज का जो अलग होता है, और हॉस्पिटल रहेगा तो डिफरेंट होते हैं, ये स्कूल और कॉलेजेस रहेगा तो अलग होते हैं। ठीक है, दैट वे इट इज़। ओके, सो उसका हेडिंग जो हेड ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट हेड्स चेंज हो सकता है, अदरवाइज द फॉर्मेट इज सेम। होप इट इज क्लियर फॉर यू। In the next class we will learn types of receipts. Okay, let us see means what is capital receipts, revenue receipts. We will explain in the next class. Then revenue receipts, all these things. Then expenditure also, types of payments, capital expenditure, revenue expenditure. See, this we will explain in the next class. Okay, because I don't want to means drag more. That will make you more difficult to understand. Whatever I explain, you have to learn it. Now let us conclude this in this class. Okay. I request all my students to study regularly. If you don't understand, watch again and again, because I want my students to score full marks in the subject or just close to 100% mark. Now, most important, you all must make a strong base in the subject. That decides your career. कैरियर डिसाइड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये जो व्हेन यू आर गोइंग फॉर CA और MBA, CA, CMA, व्हाटएवर मीन्स यू आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज़, इट विल हेल्प यू मीन्स BCom, MCom जो भी है हायर स्टडीज़ के लिए, और मेनली दिस विल हेल्प यू इन मीन्स डूइंग CA, CW, ऑल दिस थिंग्स। CA में तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा ये, बिकॉज दिस अ बेस, जो बेस आपको जो बनाएगा वो आगे भी ऐसा ही कंटिन्यू होता जाएगा, इसका एक्सपेंशन ही होगा, थोड़ा बिट लिटिल बिट एक्सपेंशन होगा, मीन्स जो हायर है जो थोड़ा वास्ट जाएगा, बस उतना ही।
otherwise the basic structure and everything is same. और if this base is strong तो आपका कुछ भी आप उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं. अगर बेस ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा. That is the thing. Please read again and again, learn and practice to achieve your life's goal. I request you all to share the videos to reach more and more people so that many students and public can take the benefit. Both intelligent and both talented students है अपना इंडिया में, country में, and when the economy grows we need more and more talented young generation, young people, highly efficient and all these things. So one of my purpose is to make more talented and knowledgeable and talented young generation. Highly skilled generation चाहिए, तो so that because there is going to be a very high requirement for this, क्योंकि अपना उतना इकोनॉमी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली अभी बिजनेस बढ़ेगा, so many opportunities are coming up, बहुत सारा जगह पे मीन्स अपॉर्चुनिटीज ओपन होते रहेगा. और जैसा मीन्स पब्लिक जो मोर इन्वेस्टमेंट और मोर बिजनेस इंडिया में आते रहेगा तो डेफिनेटली मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग अप. एंड इन ऑर्डर टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, फॉर द सोसाइटी, तो ये जो यंग जनरेशन का, टैलेंटेड जनरेशन की ज़रूरत है, स्किल्ड जनरेशन, स्किल मैन पावर का ज़रूरत पड़ता है. तो यू मीन्स शेयर द वीडियो सो दैट वी कैन टुगेदर वी कैन मीन्स मेक ए स्ट्रॉन्ग इंडिया, स्ट्रॉन्ग कंट्री. तो हेल्प ईच अदर टू ग्रो टुगेदर फॉर ए बेटर इंडिया. तो ये माइंड में होना चाहिए. तो सर्कुलेट करते जाओ, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो. And it's not difficult. Learn accounts and this thing is not that much difficult. It is easy. Only you have to just focus what is learning. And in this recorded classes, the advantage is that you can learn it whenever you are in a good mood. जब भी आपका मन आया, मीन्स मूड आया, चलो ठीक है स्टडी करता हूँ, आप जब भी जाते रहेगा, फॉर एग्जांपल ट्रैवल करते रहेगा, किधर भी ट्रैवल करते रहेगा, देन टू यू आपका मोबाइल में जाके आप देख सकते हैं जो क्लासेस जो अपना ये यू कैन गो टू अवर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हैं. और एक क्लासेस जो अभी आपको डाउटफुल है या कुछ भी है वो आप इवन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग दैट टाइम ऑल्सो, अगर कुछ ये नहीं कर रहा है, फ्री है, किधर एक जगह पे बैठा है, समझो फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी प्लेस, देयर यू हैव सम टाइम, सो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन जस्ट सी इट, मीन्स जो वट एवर द चैप्टर यू हैव सम थिंग, यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्लास. एंड द एडवांटेज इज दैट यू कैन जस्ट pause it, you can drag it back, you can pause it and study, we can read it again and you can listen it again and again, so that it will be very very convenient, very very easy to, and your base will be very strong. So take that advantage of the recorded classes. Please subscribe if not subscribed yet, and share to your contacts, ask them to subscribe my channel. Thank you.